Hello dear student, welcome to my YouTube channel. Today in this video we are starting exercise 7.1 from class 10, chapter name coordinate geometry. So you already learned in class 9 the coordinate geometry, and you know that the x coordinate is known as okay जो x हमारा जो coordinate है ना, एक मिनट है. So we have xy plane, and in this xy plane we have one x coordinate and one y coordinate. When these two x and y two lines intersect each other at 90 degree, they make a plane, and this plane is known as Cartesian plane. Which plane? Cartesian plane. And this Cartesian plane have x coordinate and y coordinate. X coordinate is known as abscissa and y coordinate is known as ordinate. 1 मार्क में पूछ सकते हैं, ज्यादा तो कुछ नहीं है. ओके, ऐसे तो आपको पता ही होगा. ठीक है, चलो फिर आगे चलते हैं. हम लोग चालू करेंगे चैप्टर नंबर 7.1 की एक्सरसाइज नंबर 1 और उसका फर्स्ट सम. ये जो है ना डिस्टेंस फॉर्मूला से होगा. कौन सा फॉर्मूला? डिस्टेंस फॉर्मूला. ठीक है, बीच में हम उसकी बात करते जाएंगे. So this is our question number 1. Find the distance between the following pair of points. हमको दो पॉइंट की पेयर दी है और हमको उनका डिस्टेंस मेजर करना है. ये पूरे एक्सरसाइज डिस्टेंस फॉर्मूला पे ही है, तो प्रैक्टिस करना जरूरी है. बेसिक में इससे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, स्टैंडर्ड में थोड़े क्वेश्चन टफ आएंगे और चैप्टर के बाहर से भी पूछ सकते हैं. ठीक है ना? ओके, सो वी स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1. पहले में दिया है पेयर 2 3 and 4 1. Okay. So I have A and B 2 point. The coordinate of A is 2, 3, whereas the coordinate of B is 4, 1. I want to find the distance AB. Now the distance formula AB distance is equal to under root x2 minus x1 square plus y2 minus y1 square. We know that in Cartesian we have x and y 2 points to represent one point on plane. Okay, x represent distance of y and y represent distance from x. Okay. Now let first take this as a x1 y1 and this as a x2 y2. Putting the value in the equation. Which equation? Distance formula. So what is our x2? This is our x2 4 minus what is x1? 2. x1 is equal to 2 and then square plus y2 1 minus y1 3. Okay, now simplifying this equation we have our answer, that is under root 4 minus 2 2 square plus 1 minus 3 minus 2 square is equal to what? 2 square 4 plus minus 2 square minus 2 into minus 2, that is also 4. So we have 4 plus 4 8. Now what is 8? 4 into 2. 4 into 2. Now 4 into 2 means what? We have 4 into 2 is equal to what? 2 square
इंटू टू। जिसका स्क्वायर है वो स्क्वायर रूट के बाहर निकल सकता है, तो ये क्या है 2 रूट 2। और आंसर के पीछे क्या लिखेंगे यूनिट, क्योंकि ये डिस्टेंस है। इट मे बी इन सेंटीमीटर, मीटर, इंच, किलोमीटर, millimeter, okay, in anything. So this is our first question. Hope you understand. अगर आपकी समझ में आया है तो लाइक करना है तो लाइक कर सकते हो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो जरूर से सब्सक्राइब कीजिए। नाउ इसी के अंदर सेकंड है। सेकंड में क्या है, -5, 7 एंड -1, 2। जो सेकंड पार्ट है उसको हम ले लेते हैं ए एंड बी। Our points are A and B. So this is my point A and this is my point B. A having coordinate x1, y1, x1, y1, and B having coordinate x2, y2. Okay. And here, what is given? -5, 7. -5, comma 7. Second one is -1, 3. -1, 3. Okay. बेसिक वैसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्योंकि उनको प्लस माइनस के क्या है आपको समझ में आता है कि नहीं आता है, इसके लिए क्वेश्चन होता है। अब डिस्टेंस इज इक्वल टू व्हाट, डिस्टेंस ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। ये पूरा अंडर रूट में आएगा। ओके, तो आपको बराबर से लिखना है। और मैथ तो ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें 100 में से 100 मार्क आ सकते हैं। वैल्यू रखते हैं हम, तो ये है हमारा x2 है ना, तो x2 की वैल्यू है -1, माइनस उसके बाद ये y2 की वैल्यू क्या है -5। अब देखो ये माइनस है, ये वाला माइनस, ये तो ड्यू टू दैट फॉर्मूला वो है ही। अब ये -5 इसकी साइन है -5। ओके, अब इसका पूरे का स्क्वायर करना पड़ेगा। प्लस नाउ व्हाट इज y2, 3, y1 7 और उसका square। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। ओके, नाउ इक्वल टू व्हाट, अंडर रूट। अब है -1 का तो -1 रहेगा, और ये -5 इंटू माइनस ये हो गया +5, और उसका करेंगे स्क्वायर। प्लस -7 + 3 हो गया -4, और उसका होगा स्क्वायर। अब यहाँ क्या हो गया, ये 5 -1 ये हो गया -4 +4, कितने +4, ये +4 का स्क्वायर प्लस ये -4 उसका स्क्वायर। अब पता है आपको, +4 का हो चाहे कि -4 का हो, 4 4 जा कितने होते हैं 16, -4 इंटू -4 वो भी 16, तो ये कितने हो गए 16 + 16 कितने हो गए √32। कैसे लिखेंगे, 4 4 जा 16 यानी कि 4 स्क्वायर इंटू 2। अब 4 स्क्वायर बाहर निकलेगा तो क्या होगा 4 √2 यूनिट। ओके, ये हमारा आंसर है। ठीक है, ना उसके बाद यहाँ पे थर्ड वाला क्वेश्चन है। कौन सा वाला है, थर्ड वाला क्वेश्चन क्या है, ए बी -a - b, क्या है ए बी एंड -a - b करते हैं यहाँ पे। ये हमारा ए बी कोऑर्डिनेट है, ये हमारा पॉइंट ए, ये हमारा पॉइंट बी। ए को देंगे x1 y1, बी को देंगे x2 y2। यहाँ पे हमको क्या दिया है ए बी, एंड दूसरा है -a - b। ये है ए बी, ए कॉमा बी, और ये है -a -b। ठीक है, तो हमने वापस लिख दिया ए बी डिस्टेंस इज इक्वल टू व्हाट, डिस्टेंस फॉर्मूला x2 - x1, x1 स्क्वायर प्लस y2 - y1, oh not plus, minus y2 - y1, y2 - y1 स्क्वायर। अब हमारा
x2 क्या है, वो तो है -a, क्या है -a, माइनस क्या करेंगे x1, वो क्या है a, इसका हो गया स्क्वायर, प्लस y2 क्या है -b, माइनस, और y1 है b और इसका स्क्वायर। ठीक है, अब -a कितना होता है -2a, कितना होता है -2a। हमने आंसर लिखना क्या है, हमने आंसर लिखना है -2a स्क्वायर प्लस -2b स्क्वायर। -2 का स्क्वायर कितना होता है 4, -2 इंटू -2, माइनस माइनस कैंसिल, 2 2 जा 4, एंड ए स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर कहाँ पे है, अंडर रूट में। अब क्या करेंगे, ये अंडर रूट में 4 कॉमन निकाल लेंगे, तो अंदर क्या रह गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब जैसे ही हमने 4 को बाहर निकालना है तो क्या होगा, 2 2 जा 4, तो आंसर आ गया 2 अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यूनिट। ओके, ये है क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। ओके, ठीक है, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन तो खत्म होता है, सेकंड भी इजी है, इसी में ले लेते हैं। ओके, वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन क्या करें, लंबा तो होगा ही। सेकंड है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 0,0 एंड 36,15। कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू टाउन्स ए बी डिस्कस इन सेक्शन 7.2। तो 7.2 में हमको दो सिटी के बारे में, दो टाउन के बारे में बताया गया है और हमको उसका डिस्टेंस फाइंड करना है कि एक दूसरे से कितने सेपरेट है। ठीक है, तो हमने ले लिया ये हमारा दो पॉइंट, ये पॉइंट है हमारा ए और ये पॉइंट है बी। अब क्या है, ये है 0,0 और ये है 36,15, है ना, 36,15। अगर हमको इसका डिस्टेंस फाइंड करना है तो हमको लिखना पड़ेगा डिस्टेंस ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। और जब x1 एंड y1 0 0 है तो ये क्या हो गया, ये हो गया x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर, क्योंकि वो दोनों तो 0 0 है। और फ्रॉम द ओरिजिन एक हमारे पास डिस्टेंस का एक नया इक्वेशन भी है, अगर ओरिजिन के बारे में हम बात करते हैं तो हमको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ बी के कोऑर्डिनेट का स्क्वायर करके वहां से ढूंढ लेना है। तो यहाँ पे हम लिखते जाएंगे, ये है हमारा 36, क्या है 36 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर। बहुत सारे तरीके से इसको कर सकते हैं, सीधा सीधा इसका स्क्वायर करके लिख सकते हैं। 36 का स्क्वायर किसी को याद है तभी लिख सकते हैं, लेकिन मैं तो ऐसे करूंगा, क्या करूंगा मैं 36 के लिखूंगा 36 इंटू 36 प्लस 15 इंटू 15। 36 का 12 सीधा 12 इंटू 3, वापस दूसरा 36 का 12 इंटू 3 प्लस 15 का 5 इंटू 3, दूसरे 15 का 5 इंटू 3। अब क्या हो गया, 3 3 9, ये जो कॉमन निकल गया, क्या हो गया 3 3 9, मेरे पास से क्या निकल गया कॉमन। यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो मैंने 9 को 3 3 9 को कॉमन निकाल लिया। अच्छा, ये क्यों हुआ ऐसा, क्या कॉमन निकाल लिया 9, 9 कॉमन निकाल लिया तो अंदर क्या रह गया 12 इंटू 12, क्या रह गया 12 इंटू 12, फिर प्लस का प्लस और 5 इंटू 5, 5 इंटू 5। अब जो 12 12 12 इंटू 12 तो आपको पता होगा ना, तो √9 का क्या होता है 3 3 3 9 ना, तो ये हो गया 3 बाहर निकल गए।
और 12 का स्क्वायर, 12 इंटू 12 कितने होते हैं 144 प्लस 5 इंटू 5 25। अब 144 प्लस 25 होते कितने हैं 1, ये 3 का 3 अंडर रूट 5 4 9 4 2 6 एंड 1। तो ये क्या है 13 का स्क्वायर है, कितने का अंडर रूट 13 स्क्वायर। तो ये क्या हो गया हमारा आंसर हो गया इधर 3 इंटू 13 क्या है 13, 13 3 जा 39 और ये क्या है यूनिट। अगर ये दो डिस्टेंस है दो सिटी के बीच में, तो आंसर है 39 किलोमीटर के एम। ओके, नाउ इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन है वो क्या है, हाँ थर्ड है, डिटरमाइन इफ द पॉइंट 1 5 2 3 एंड -2 -11 आर कोलिनियर। बात करते हैं कोलिनियर पॉइंट्स की। ये कोलिनियर होते क्या है, एक ही लाइन में जो है उसको क्या बोलते हैं कोलिनियर पॉइंट्स। हमको 3 पॉइंट दिए हैं, कितने वाले 3 पॉइंट दिए हैं। ये है हमारा लाइन और ये लाइन के ऊपर हमारे पास 3 पॉइंट है ए बी एंड सी, ऐसे 3 पॉइंट है। ज्यादा दिमाग लगाने की हमको जरूरत ही नहीं है। इसमें करना क्या है, इसको दे दिया x1 y1, इसको बोल दिया x2 y2, इसको बोल दिया x3 y3। देखो अगर ये कोलिनियर है तो ए बी प्लस बी सी, जो डिस्टेंस ए बी है प्लस डिस्टेंस बी सी है, ये कितना होगा ए सी जितना, कितना ए सी जितना। अगर ए बी प्लस ए सी, अगर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस और फिर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस और उनका प्लस उनका एडिशन और टोटल डिस्टेंस जितना होता है, तो ये क्या है एक लाइन है, अदरवाइज इट इज नॉट अ लाइन। बस हमको इतना ही करना है, ठीक है। लेकिन क्या करेंगे हम 3 पॉइंट जो हमको दिए हैं उसको एक के नीचे एक लिख लेते हैं। तो ये मेरा पहला पॉइंट है ए के कोऑर्डिनेट है 1 5, कितने हैं 1,5। और सेकंड है बी के कोऑर्डिनेट है मेरे 2,3, 2,3। और ये सी के कोऑर्डिनेट है मेरे -2, -11। ये 3 हो गए, ठीक है। अब क्या करना है ए बी ढूंढना है। क्या ढूंढना है मुझे ए बी। तो ए बी के लिए क्या करेंगे, वही करेंगे x2 -x1, यानी कि यहाँ से यहाँ माइनस करेंगे और लिख लेंगे। तो ये x क्या है 2 और x2 क्या है 2, x1 क्या है 1 और उसका स्क्वायर प्लस 3 -5 कितना होता है 3 -5 और उसका स्क्वायर। यहाँ से ऊपर जाएंगे, ठीक है। देखो कभी क्या होता है कि एक मेथड सीख लो आप, उसके बाद वैसे ही सुन करते जाओ, तो मैथ जितना इजी कोई सब्जेक्ट नहीं है। 2 -1 कितना होता है 1 और 1 का स्क्वायर प्लस 3 -5 कितने हैं -2 और उसका स्क्वायर। अब -2 का स्क्वायर कितना होता है 2 2 जब 4 ही होता है, वहां पे स्क्वायर में माइनस आता नहीं है। ये हो गया 1 प्लस 4, ये हो गया √5 यूनिट। क्या है ए बी का डिस्टेंस। ना हम लोग को किसका ढूंढना है बीसी का, किसका बीसी का। वापस लिख देते हैं, हमारे पास है पॉइंट बी एंड सी। तो बी के कोऑर्डिनेट है हमारे पास 2,3 एंड सी के कोऑर्डिनेट है हमारे पास -2, -11 और इसका कितना हो गया देख लेते हैं। अब क्या करेंगे यहाँ से यहाँ माइनस करेंगे, तो बी सी इज इक्वल टू डिस्टेंस बी सी इज इक्वल टू √x2 - x1। हाँ, आपको तो बोर्ड के एग्जाम में लिखना है, अभी तो प्रैक्टिस के लिए लिखने की जरूरत नहीं है। ये क्या हो गया -2 -2, क्यों, ये है हमारा x2 और ये है हमारा x1।
ओके, अब ये है हमारा y2 प्लस, ये स्क्वायर रखना भूल गया, स्क्वायर आप मत भूल जाना, -11 -3 और उसका स्क्वायर है ना, ये माइनस तो हमारे फॉर्मूला में है। अब -2 कितने होते हैं, -4 और उसका क्या करेंगे, स्क्वायर प्लस, ये क्या है, -14 और उसका स्क्वायर। ठीक है, तो 1 मिनट, तो ये हो गया हमारा -4 का स्क्वायर कितना होता है, 4 4 जा 4 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 16 प्लस 14 मल्टीप्लाई बाय 14, ये होते हैं 196। कितने होते हैं, 196। अब कितने हो गए, अंडर रूट 6 + 6 12, 1 9 10 11 1 2, ये हो गए 212। अंडर रूट कितने हो गए, 212। अब हमको ढूंढना है AC, कितना ढूंढना है, AC ढूंढना पड़ेगा ना AC। तो AC के लिए वापस A और C दोनों के कोऑर्डिनेट लिख लेंगे। ये है हमारा AC और ये है C। A का कोऑर्डिनेट कितने हैं हमारे, 1,5 1,5 और C के है -2, -11 है ना। और हमको ढूंढना है AC। नाउ व्हाट इज AC, AC इज इक्वल टू अंडर रूट -2 -1 स्क्वायर प्लस -11 -5 स्क्वायर। ठीक है, अब -2 -1 होते कितने हैं, ये होते हैं -3 स्क्वायर प्लस ये होते हैं -16 स्क्वायर। -3 का स्क्वायर कितना होता है, ये होता है +9 और 16 का 256 प्लस 9 कितने होते हैं, 265 कितने होते हैं, 265। ये 265 का अंडर रूट का कुछ भी निकालो, लेकिन √5 लिख लेते हैं, ये कॉलिनियर नहीं होता है। ठीक है ना, ठीक है।